નમસ્કાર, વિકાસ આપણા સૌનો ચેનલ પર આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। આજે ગુરુવાર જોઈશું મળવા જેવા માણસોની શ્રેણી, પણ શરૂઆત કરીએ વિકાસની નોંધપોથી દ્વારા। વિકાસની નોંધપોથીમાં આજે જોઈશું ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ઉપક્રમે આંતર કોલેજ તરણ સ્પર્ધાનું આયોજન, પાલીવાલ બ્રહ્મ સમાજના વિદ્યાર્થીઓનો ઇનામ વિતરણ સમારોહ યોજાયો। ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ઉપક્રમે એક વિશિષ્ટ તરણ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શ્રી સહજાનંદ કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટના યજમાન પદે ભાવનગર યુનિવર્સિટી બોર્ડ ઓફ સ્પોર્ટ્સ દ્વારા આંતર કોલેજ તરણ સ્પર્ધાનું આયોજન ભાવનગર મ્યુનિસિપલ સ્નાનાગાર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। આ સ્પર્ધામાં 25 ભાઈઓ અને 6 બહેનોએ કુલ મળી 9 કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। સમગ્ર સ્પર્ધાને સફળ બનાવવા યજમાન કોલેજના પીટીઆઈ ચેતનભાઈ ધાનાણી, પીએ ગોહિલ, છગન જાંબુચા, પીસી ગોદાણી, પરેશ ડોડિયા, અરવિંદ રાણપુરા, યોગેશભાઈ ત્રિવેદી, આ ઉપરાંત સ્વિમિંગ એસોસિએશનના મંત્રી શ્રી પ્રભાતસિંહ ગોહિલ, ઉપપ્રમુખ શ્રી પરેશભાઈ પટેલ વગેરેએ સારી જહેમત ઉઠાવી હતી। પાલીવાલ બ્રહ્મ સમાજના ઉપક્રમે વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ વિતરણ કરવાનો એક સુંદર કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો। પાલીવાલ બ્રહ્મ સમાજના તેજસ્વી તારલાઓને ઇનામ વિતરણ સમારંભ આનંદ હોલ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી સીતારામ બાપુ અધ્યક્ષ પદે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમના વરદ હસ્તે સમારંભનું ઉદ્ઘાટન સંપન્ન થયું હતું। પ્રારંભે આરટી મહેતા હાઈસ્કૂલના માજી આચાર્ય શ્રી છગનભાઈ પંડ્યાએ ઉપસ્થિત મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું અને કાર્યક્રમની પૂર્વ ભૂમિકામાં કહ્યું હતું કે જ્ઞાતિના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું જાહેરમાં સન્માન કરી સમાજના અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા પૂરી પાડી જ્ઞાતિમાં નૈતિક મૂલ્યોના જતન સાથે ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસ્થાપિત થાય એ હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શ્રી હરગોવિંદભાઈ અને ડોક્ટર નટુભાઈ પંડ્યાએ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યા હતા। અંતમાં અધ્યક્ષકીય પ્રવચન સંત શ્રી સીતારામ બાપુએ આપ્યું હતું। કાર્યક્રમના અંતે શ્રી છગનભાઈ પંડ્યાએ આભાર વિધિ કરી હતી। સમગ્ર કાર્યક્રમના સફળ આયોજન માટે જયરામભાઈ જાની અને હસમુખભાઈ પંડ્યાએ સારી જહેમત ઉઠાવી હતી। આ પ્રસંગે મહેમાન પદે જ્ઞાતિના પ્રમુખ શ્રી મૂળશંકરભાઈ બારૈયા, મહામંત્રી શ્રી મહેશભાઈ પનોત તેમજ સહમંત્રી શ્રી જયરામભાઈ જાની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો દર્શક મિત્રો, આ હતી વિકાસની નોંધપોથી અને હવે સમય છે મળવા જેવા માણસો શ્રેણી। આ શ્રેણીમાં જયપુર સ્થિત રાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતિ ધરાવતા પત્રકાર સાહિત્યકાર શ્રી રમેશ થાનવી સાથેની નોંધપાત્ર મુલાકાત નિહાળીશું। શ્રી રમેશ થાનવી છેલ્લા 30 વર્ષથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે જાણીતું હિન્દી ભાષાનું આગવું સાહિત્ય અનૌપચારિકતાનું સંપાદન કાર્ય સંભાળી રહ્યા છે। તેમના બાળ વાર્તા અને બાળ ગીતોના સંગ્રહો પણ ખૂબ જ જાણીતા છે। તો આવો નિહાળીએ મળવા જેવા માણસો શ્રેણી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિકાસ આપણા સૌનું ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જયપુરથી આવેલ અનૌપચારિકા પત્રિકાના સંપાદક શ્રી રમેશ થાનવીજીનો પરિચય કરવાનો છે। તેઓ જયપુરથી ખાસ અહીંયા આવ્યા છે। नमस्कार। नमस्कार। विकास अपना सोनो चैनल में आपका स्वागत है और हम हमारे दर्शक मित्रों के साथ आपसे कुछ परिचय चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हम ये जानते हैं कि अनौपचारिका पत्रिका के आप संपादक हैं, तो अनौपचारिक के बारे में, उनके बारे में कुछ हमें हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। नमस्कार, मैं जयपुर से आया हूँ। वहाँ से मैं अनौपचारिका पत्रिका का संपादन करता हूँ। किसी ज़माने में ये केवल अनौपचारिक शिक्षा की पत्रिका थी। आज ये पत्रिका
समकालीन शिक्षा चिंतन की पत्रिका है। पूरे भारत में आज जो शिक्षा चिंतन चल रहा है उसको आगे लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। न केवल इतना ही, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा चिंतन में अधिक से अधिक लोग सक्रिय हो जाएं और भागीदारी करें। इसमें जो परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी भागीदारी भी हम आमंत्रित करते हैं और शिक्षकों की सक्रिय सतत भागीदारी हम आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि माँ बाप सोचना सीखें, अपने बालकों की शिक्षा के बारे में स्वयं विचार करना सीखें और घर में निरंतर एक संवाद चलता रहे कि बालकों की शिक्षा कैसी हो। और ये बात मैंने गिजू भाई से सीखी है, श्री गिजू भाई बदेका, जो भावनगर के एक कीर्ति पुरुष रहे हैं, एक शिक्षा मनीषी रहे हैं। मैं इसीलिए भावनगर आया हूँ कि गिजू भाई का काम यहाँ देख सकूँ, क्योंकि वे बरसों से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपको अनौपचारिका पत्रिका के अलावा और भी कोई संपादक का अनुभव हो तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। संपादन और प्रकाशन का मुझे लंबा अनुभव है। मैं कई गलियों से गुजरा हूँ जहाँ मैंने काम सीखा है और सीखते सीखते निरंतर अभ्यास करते करते आज मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत संपादन सीख सका हूँ। मैंने भारतीय ज्ञानपीठ से जुड़ करके वहाँ से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों का संपादन भी किया है और साथ ही उसके तुरंत बाद मैं प्रतिपक्ष नाम के एक साप्ताहिक अखबार से भी संबद्ध रहा, जिसने अपने ज़माने में एक तहलका मचाया और वह ऐसा अखबार था जिसकी आवाज़ गूंजती थी, संसद तक में गूंजती थी। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे प्रधान संपादक थे और उसमें भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला। लेकिन मेरी मूल रुचि साहित्य और संस्कृति में है। भारतीय ज्ञानपीठ से भी इसलिए जुड़ा था कि मैं संस्कृति और साहित्य से जुड़ करके पूरे देश के वाङ्मय को ठीक से समझ सकूं, समकालीन साहित्य को जान सकूं और उसमें मुझे रस आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो साहित्य की जो पत्रिका है आलोचना, बरसों से जो बहुत प्राचीन समकालीन हिंदी साहित्य के आलोचना पत्रिका, उसका नाम ही आलोचना है और नामवीर सिंह उसके संपादक थे। उन्हें भी मैंने राजकमल प्रकाशन में रहते हुए सहयोग दिया। उसके बाद मैं प्रौढ़ शिक्षा का काम करने लगा जयपुर में और ये अनौपचारिका लगभग 30 साल से निकाल रहा हूँ। आपने आलोचना, प्रतिपक्ष और अनौपचारिका ऐसी तीन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो आपने कुछ लिखा भी है, हमने सुना है। आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं कविताएं भी लिखता हूँ। मैं बालकों के लिए भी कविताएं लिखता हूँ। मैं बालकों के लिए उपन्यास भी लिखता हूँ। एक बड़ा पुराना उपन्यास जो बरसों पहले छपा राजकमल प्रकाशन से, फिर वाणी प्रकाशन से, बीच में संभावना प्रकाशन से, लेकिन उस उपन्यास का नाम था घड़ियों की हड़ताल। घड़ियों की हड़ताल। और उस उपन्यास में छोटा लघु उपन्यास था, मगर वो बहुत लोकप्रिय हुआ इसलिए कि मैंने बालकों को समय के बंधन से मुक्ति दिलाने का एक प्रयास किया था। समय को जैसे बालकों पे आरोपित किया जाता है, थोप दिया जाता है और हर बच्चा एक मैकेनिकल, एक पुर्जे की तरह, एक मशीन के पुर्जे की तरह व्यवहार करने को बाध्य किया जाता है, उससे बचाने के लिए मैंने घड़ियों को हड़ताल पर भेज दिया था और मुझे लगा था कि दुनिया के तमाम बच्चे आज़ाद हो जाएंगे और इस मुक्ति का एहसास लेंगे। तो जैसा सोचा था वैसा हुआ भी, वो बालकों में बहुत लोकप्रिय हुआ। बाल गीत मैंने बहुत लिखे हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं 7 बरस तक उर्मूल ट्रस्ट के लिए गुब्बारा नाम की एक बाल पत्रिका का संपादन करता रहा। और फिर संपादन की बात आई। हाँ, तो गुब्बारा नाम की पत्रिका का मैंने संपादन किया है और उस पत्रिका का 7 साल तक संपादन करने के बाद, करते हुए मैंने पाया है बार बार कि हमारे ग्रामीण बालकों को क्या चाहिए। आज ये फ़र्क हो गया है कि जितनी बाल पत्रिकाएँ हैं वे शहरी बालकों को संबोधित हैं। वे केवल बड़े कस्बों और शहरों को संबोधित हैं। उनमें माँ बाप नहीं हैं, उनमें मम्मी पापा हैं, उनमें कोको कोला की नदियाँ बहती हैं, उनमें पेप्सी की नदियाँ बहती हैं,
उनमें चॉकलेट्स के नाम हैं जो हमारे ग्रामीण बालकों ने कभी देखा ही नहीं है। और मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत गुजरात के ऋषि लोग रहे, नाना भाई रहे, मनुभाई पंचोली दर्शक रहे, लोक भारती मेरे लिए प्रेरणा रही। तो मैं बार बार, और प्रेमचंद रहे मेरे प्रेरणा स्रोत, तो मैं बार बार गाँव की ओर देखता हूँ। तो उसी लिए मैंने गुब्बारा राजस्थान के ग्रामीण बालकों को संबोधित करते हुए संपादित किया था। तो उसमें मैंने एक अभ्यास किया कि मैं उसका जो संपादकीय है वो हमेशा गीत में लिखूंगा या गद्य गीत में लिखूंगा। और ये कोई हरि कृपा थी, ये कोई तमाम मित्रों का आशीर्वाद था कि मैं 7 साल तक गीत में संपादकीय लिखने का निर्वाह कर सका। जब शुरू किया था तो लोगों ने कहा कि तुम गीत में क्या शुरुआत करो, नहीं लिख सकोगे, कठिन काम है। तो मगर वो निर्वाह हो गया और हो गया। तो उसके जो संपादकीय थे उसके कई संपादकियों को संकलित करके और एक पुस्तक छपी पिछले दिनों 2000 का, जब ये सहस्राब्दी पूर्ण हुई तब। तो मेरी उस कविता पुस्तक का नाम था बीते पूरे बरस हजार। और एक और संपादकीय था जो केवल संपादकीय था गुब्बारा का, मगर भोर भई उसका शीर्षक था। और भोर भई एक संपादकीय से नेशनल बुक ट्रस्ट एक पुस्तक प्रकाशित कर सका, उसका नाम ही भोर भई है। अच्छा। और भोर भई में ये भोर के जो अर्थ ग्रामीण बालकों के लिए होते हैं वो व्यक्त किए गए हैं। तो ऐसे कुछ काम करने का मैं एक प्रयास है मेरा। और नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पुस्तक दूसरी भाषाओं में भी छपी है, ये बात? हाँ, वो मैं उसको पुस्तक नहीं, मैं पुस्तिका कहना पसंद करूँगा। इट इज़ अ बुकलेट। तो वो पुस्तिका है जिसका नाम है बदलाव का अधिकार, और उसका 10 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और वो 10 गुजराती में भी हुआ है। अच्छा। हाँ, और बंगला में भी हुआ है, कन्नड़ में हुआ है, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, कई भाषाओं में, मतलब 10 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और वो पुस्तक लिखी थी मैंने इसलिए कि उसे पढ़ने वाले मेरे तमाम पाठक इस समाज की जड़ता को तोड़ने में आगे कदम बढ़ावें और जड़ता से बाहर निकलने का प्रयास कर सकें। क्योंकि मैं लिखने को एक सायास कर्म भी मानता हूँ कि हमारा लेखन थोड़ा सा सौदेश्य भी कभी कभी जरूर होना चाहिए, केवल स्वांतः सुखाय नहीं होना चाहिए। तो उसमें मेरा मन होता है कि कोई बात अगर कहीं पहुँचे तो समाज कभी करवट बदलेगा। आपने एक पुस्तक शिक्षा की परीक्षा नाम की भी लिखी। हाँ, उसके बारे में कुछ कहें? वो शिक्षा पर मेरे ललित निबंधों का एक संकलन है। और ललित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं शिक्षा को एक हिंदी साहित्य के मुहावरे में पेश करना चाहता हूँ। शिक्षा को उस मुहावरे से बाहर लाना चाहता हूँ, शिक्षा चिंतन को और शिक्षा की तमाम अभिव्यक्तियों को, जो कि टेक्स्ट बुक या कि किताबी अभिव्यक्तियों में खो जाती है हमेशा, और भारी भरकम हो जाती है और किसी को समझ में नहीं आती है। तो मेरा आग्रह ये रहता है कि मैं ऐसी बात कहूँ जो सदा पठनीय हो और पाठक को अपने से जोड़ लेती हो और पाठक को सोचने को विवश करती हो। शिक्षा में चिंतन जगाना ये मेरा एक प्रयास है निरंतर। कई सालों से एडल्ट एजुकेशन और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कुछ समिति में रहे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। प्रौढ़ शिक्षा भी, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं कुछ काम सौदेश्य करता हूँ, तो मेरा एक बड़ा मकसद था कि हम लिखने वाले लोग लिखते तो हैं मगर पढ़ने वाले लोग तो भारत में बहुत कम हैं। मेरे एक मित्र कहा करते थे कि तुम लिख करके अपने को क्यों खपाते हो, क्योंकि भारत में सिर्फ 3% लोग ग्रामीण जनता पढ़ सकती है। फिर वो 5 हुई, फिर 15 हुई, लेकिन उनका कहना ठीक था। तो मैंने प्रौढ़ शिक्षा का काम हाथ में ही इसलिए लिया कि मैं ग्रामीण साक्षरता को थोड़ा आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने साक्षरता के काम से मैं जुड़ा। जयपुर में स्टेट रिसोर्स सेंटर एडल्ट एजुकेशन का मैंने कायम किया। वो देश का पहला रिसोर्स सेंटर था। उसके बाद तो 17 रिसोर्स सेंटर खुले, फिर 20 खुले, फिर 25 खुले, लेकिन वो देश का पहला रिसोर्स सेंटर 1976 में स्थापित किया गया था। तो उसमें हमने ये काम किया कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी साक्षर करने के नए नए तरीके खोजें।
इन तरीकों के बारे में कुछ एक छोटी सी बात पे, सब तरीकों पे मैं हाँ, बात नहीं कर थोड़ा सकता, बात है मगर वो बड़ी बात है कि वो हम कर सके। वो ये कि मैं ये मानता हूँ कि साक्षरता का काम लोक भाषा में ही हो सकता है, अच्छा, बोलियों में ही हो सकता है, मातृभाषा में ही हो सकता है। तो हमने ढूंढाड़ी में पहली किताब बनाई, उसका नाम रखा पहली पोथी। तो वो ढूंढाड़ी बोली में थी। ढूंढाड़ी बोली, ढूंढाड़ी बोली है, वो जयपुर के आसपास की बोली है। अच्छा। जयपुर, सीकर, टोंक इन जिलों की बोली है। अजमेर की बोली मेरवाड़ी बोली है, तो मैंने मेरवाड़ी में एक प्रवेशिका बनाई। फिर उदयपुर की बोली मेवाड़ी है, तो मैंने मेवाड़ी में एक प्रवेशिका बनाई। फिर हाड़ौती में चंबल का जो इलाका है वो कोटा, झालावाड़, बारां ये इलाका चंबल का इलाका है, तो वो उसके लिए मैंने हाड़ौती में एक प्रवेशिका बनाई और उसका नाम रखा चामल पोथी। तो चामल उस प्रवेश को ही कहते हैं, चंबल के प्रवेश को, तो मैंने नाम रखा चामल पोथी। अच्छा, तो इस तरह से मैंने राजस्थान की बोलियों में प्रवेशिकाएं बनाई। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जब मैंने ये प्रवेशिकाएं उमाशंकर भाई को दिखाई, वे मेरे परम हमारे गुजरात के आपके प्रसिद्ध गुजरात के प्रसिद्ध कवि, आपके गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षाविद, भारत के राज्यसभा के मेंबर, भारतीय राज्यसभा के सदस्य, और वहाँ राज्यसभा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले एक जागरूक कीर्ति पुरुष, मैं ऐसे कहता हूँ, इस तरह से उनका स्मरण करता हूँ। तो उमाशंकर भाई को जब मैंने ये प्रवेशिकाएँ बताई तो वे बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा कि रमेश तुम सही काम कर रहे हो, और मुझे आशीर्वाद दिया। और तब आशीर्वाद दे के नवरंगपुरा के अपने मकान में मुझे संस्कृति का पूर्णाहुति अंक स्वयं भेंट किया। वो मेरी थाती है आज, वो आज भी मेरे पास है। उससे पहले मैं संस्कृति पढ़ता रहा हूँ गुजराती में, लेकिन आप गुजराती जान सकते हैं? हाँ, मैं गुजराती पढ़ सकता हूँ, गुजराती कोई बोले तो मैं समझ सकता हूँ। गुजरात में रहता नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ ठीक से। आपने कई विदेश यात्रा भी की है, कई विदेश यात्रा हमने सुना है, तो किस हेतु ये सब हुआ और क्या हुआ, ये थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। विदेशों में जाने का अवसर बहुत मिला है, मगर प्रयोजन यही था कि मैं उन देशों में जाऊं जहां प्रौढ़ शिक्षा का काम बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले मैं सीखने के लिए वियतनाम गया, और आपको मालूम ही है कि वियतनाम ने युद्ध के दरमियान अपने पूरे देश को संपूर्ण साक्षर किया, और वो एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था कि एक तरफ युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ ये अभियान चल रहा था कि पूरा देश एक साथ साक्षर हो जाएगा। तो मैं 1978 में वियतनाम गया, और वियतनाम में मैं रहा। मैं यूनेस्को की मिशन पे था। मेरी सारी विदेश यात्राएं लगभग यूनेस्को ने ही आयोजित की हैं, यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनेस्को ने मुझे वियतनाम भेजा, मैं वहाँ अध्ययन करने गया और उन तमाम तरीक़ों का अध्ययन किया जिससे शीघ्र साक्षरता हो सकती है, और साक्षरता लोगों के साथ संकट के समय में भी बैठ के संभव हो सकती है। तो ये मेरा प्रयास था पहला। लेकिन उसी दरमियान मैंने थाईलैंड में भी रह कर के और बहुत अंदर के गाँव में जा कर के थाईलैंड के लिटरेसी प्रोग्राम को भी देखा कि वहाँ साक्षरता का काम कैसे हुआ है, तो उसको भी समझा। उसके बाद कई देशों का अवसर मिला है, तो खूब देश मैंने घूमे हैं, और अलग अलग देशों में मैंने साक्षरता प्रसार की तमाम विधियों और शोधों इत्यादि का अध्ययन किया है, भाषाओं का। तो एक जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि गुजरात में बैठा हूँ और गुजरात के भाई रविंद्र दवे, RH दवे साहब पूरे विश्व के बड़े शिक्षाविद हैं। वे हैम्बर्ग में यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर थे जब मुझे वहाँ एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया गया, और मैंने वहाँ रह कर के पूरी अफ्रीका में जो सामग्री बनी है साक्षरता की, वो सारी सामग्री का अध्ययन किया। अफ्रीका 2 भागों में विभाजित है, एक फ्रैंकोफोन और एक एंग्लोफोन। एक तरफ अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, मगर वहाँ जो साक्षरता की सामग्री बनी वो उनकी अपनी बोलियों में बनी, मातृभाषाओं में बनी, उनकी अपनी लिपियों में बनी, और वो मैंने अध्ययन किया और बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी प्रयास किए
ये एडल्ट एजुकेशन और प्रौढ़ शिक्षा में उनके कोई परिणाम मिलते आपको दिखने में आए? क्या परिणाम उसके आए? राजस्थान में जब मैंने काम शुरू किया तो वो एक मिशन था। मैं उसको रामकाज कहता हूँ, वो राजकाज नहीं था। अच्छा। तो रामकाज वो होता है जो आंतरिक भावनाओं के साथ, सेवा के साथ, जनता के साथ जुड़ करके एक लोक तादात्म्य के साथ किया जाता है। ये मेरी अपनी समझ है। तो वो रामकाज मेरा अभियान था, एक अभियान के अंतर्गत वो रामकाज मुझको करना था और उसमें लोगों को जोड़ना था, लोगों को जागृत करना था कि लोग साक्षरता को एक लोकाभियान बना दें। लोग साक्षरता को एक राज का चलाया हुआ कार्यक्रम न समझें, वो लोकाभियान बना दें। खुद संकल्प करें कि हम पढ़ेंगे और अंततः हम पढ़ाई इसलिए नहीं करेंगे कि हम छल छद्म कर सकें, लेकिन पढ़ाई करेंगे ढाई आखर प्रेम का पढ़ने के लिए। तो कबीर के साथ रहते हुए साक्षरता का अभियान था वो, और उसका परिणाम कोई मिलेगा ये सोच के हमने उस अभियान को चलाया नहीं था, क्योंकि परिणाम पर नज़र हमारी थी नहीं। हम ये चाहते थे कि लोग शामिल होकर के एक ऐसी फिज़ा बनाएं कि कल शक्ल बदल जाए। और परिणाम आज आया है कि जो राजस्थान 25%, 15%, 30% साक्षर था, वो आज 68% साक्षर हो गया है। जो भारत में दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे आता था बिहार के बाद। हम लोग तो बीमारू राज्य वालों में आते थे ना, राजस्थान भी बीमारू राज्यों में से एक था, मगर आज साक्षरता प्रतिशत अचानक ऊपर बढ़ा है और महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत भी ऊपर बढ़ा है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि मेरे काम का परिणाम है, लेकिन ये राजस्थान के लोगों में जो संकल्प जगा, जो फिज़ा बदलने के लिए जो एक भावना जगी, ये उसका परिणाम है। तो आप भावनगर यहाँ कुछ देखने के लिए आए, ऐसा आपने कहा, तो आप तो कुछ यात्रा करके ही आए हैं, कुछ देखा भी है, तो क्या देखा और आपने क्या महसूस किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, भावनगर को मैं अपनी अंदर की आंखों से तो पिछले 35 वर्षों से देखता रहा हूँ। मेरा आना नहीं हुआ, ये पता नहीं कैसे हुआ कि मैं यहाँ नहीं आ सका और पूरी दुनिया घूमता रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे कुदरत ने यहाँ आज भेजा है, तो एक उचित समय चुन करके ही भेजा है। तो आज मैं आया हूँ और मैं 35 वर्षों से देखता रहा हूँ, इसलिए कि मैं गिजुबाई से प्रेरणा लेता रहा हूँ, मैं मादाम मोंटेसोरी से प्रेरणा लेता रहा हूँ, मैं मनुभाई पंचोली दर्शक से प्रेरणा लेता रहा हूँ, नाना भाई भट्ट, बबल भाई मेहता, गौरशंकर भाई भट्ट, ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और मैं इनको नए भारत की, आज़ाद भारत के अंतिम ऋषियों में से मानता हूँ कि ऋषि परंपरा थी शिक्षा में, रविशंकर महाराज। तो भावनगर तो मेरे मन में जाने कब से एक बहुत ही आत्मीय स्थान बनाए हुए हैं। और आज आया हूँ, मैंने गिजुबाई का बाल मंदिर देखा है, भीमूबेन से पहले भी मिल चुका हूँ राजस्थान में, मगर अब मिला हूँ, लेकिन बाल मंदिर के बालकों के दर्शन करके मैं बहुत अभिभूत हुआ हूँ। बाल मंदिर जैसे चलता है, जो मेरी कल्पना में था, कि जो गिजुबाई की पुस्तकों में मैंने पढ़ा था, तो वो सब सामने चरितार्थ होते जब देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मनुभाई पंचोली का सनोसरा का एक प्रयोग, मैं उसको एक बड़ा प्रयोग मानता रहा हूँ। लोक भारती को शिक्षा में वो बहुत बड़ा प्रयोग है। उस प्रयोग दर्शन के अवसर मुझे आज ही मिला, तो मैं कल सनोसरा गया, वहाँ लोगों से मिला, देखा। तो अब मनुभाई नहीं है और मैं एक ऐसे प्रयोग को देखने जा रहा हूँ जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो कल सनोसरा भी देखा और आसपास के दूसरे स्कूल भी देखे, आमला के, और आमला की ग्राम दक्षिणामूर्ति भी गया। एक और भी संस्था वाड़ूकड़, हाँ, लोक विद्यालय भी देखा। और लोक विद्यालय की अंदर की शुचिता और आत्मीयता देख के भी बहुत अच्छा लगा। वड़ावड़ की कन्या विद्यालय, हाँ, वहाँ थोड़ा समय बिताया, मगर वड़ावड़ का कन्या विद्यालय भी देखा। उनके फाजिल भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, वहाँ की बच्चियों से मिलके बहुत अच्छा लगा।
एक जो बात समझ में आती, मैं गया वहाँ बिल्कुल पल भर के लिए ही था, लेकिन जिस किसी भी विद्यालय में गया वहाँ जो प्यार मिला बालकों की आँखों में, बालिकाओं की आँखों में, वो प्यार ये संदेश देता है कि प्रेम जो है वो एक सार्वजनीन सत्य है। चाहे हम राजस्थान रहें, चाहे हम लोक भारती आ जाएं, चाहे वह किसी भी गांव चले जाएं, तो प्रेम एक सार्वजनीन सत्य है। उसी के लिए हम प्रौढ़ शिक्षा का काम भी करते रहे और बाल शिक्षा में भी बिना अनुराग के, बिना स्नेह के, बिना वात्सल्य के मैं कोई सफल कार्यक्रम संभावित होता नहीं देखता। आपने पूरा जीवन बहुत गहराई से शिक्षा के बारे में सोचने में, उसके प्रयोग करने में, उसके बारे में लिखने में बिताया। तो हमारे दर्शकों को, भावनगर के दर्शकों को आप अपने जीवन के थोड़े शब्दों में सार जो कुछ कहना चाहते हैं, अपने जो सूझे आपको वो कुछ शब्दों में बताइए, और फिर हम भी आपकी जो ज्ञान है उनका लाभ इस तरह ले सकें। तो भावनगर वासियों से तो मैं यही निवेदन कर सकता हूँ कि यदि उनके पास नाना भाई भट्ट, मूलशंकर भाई भट्ट, गिजू भाई, हरेंद्र भाई आदि तमाम ऋषियों की एक बड़ी संपन्न परंपरा रही है, एक थाती है भावनगर की ये, और ऐसी थाती के बावजूद भी यदि भावनगर के बालकों का बचपन छीना जाता है तो इससे बड़ी दुर्घटना और समाज में कोई नहीं हो सकती। और ये बचपन छीना जाता है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, वो जो शिक्षा की दुकानें बन जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि बालकों पर कोई इस तरह का आरोपण न किया जाए जिससे उनका बचपन खतरे में पड़ जाए। तो भावनगर के तमाम अभिभावकों से मैं ये निवेदन कर सकता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी परंपरा को अपने साथ लेकर के उसका पोषण करते हुए अपने बालकों के बचपन को बचाए रखें, सुरक्षित रखें, ताकि कल दुनिया में, समाज में हम हर पल किलकारियाँ सुनते रहें और निरंतर बालकों की हंसी खुशी से अपने को अनुप्राणित करते रहें। आपने अपने अनुभवों से विकास अपना सोनो चैनल में जो अपने विचार रखे, उसके लिए मैं सभी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે રમેશભાઈ થાનવી સાથેની નોંધપાત્ર મુલાકાત નિહાળી। આવતા સપ્તાહે આવી જ કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। આવજો।